ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ سوشل میڈیا پر آج نیا ہنگامہ ہو رہا ہے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگانے کو لے کر۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کی، ان کی پوری ٹیم کی، ان کے آئی ٹی سیل کی مسلمانوں کے ہر کام پر نظر رہتی ہے، اور مسلمان کہیں پر بھی فریڈم فائٹر کو یاد نہ کرے، ان کی تصویر نہ لگائے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کا ذکر نہ کرے۔ یہی یہ چاہتے ہیں، اور اگر کسی مسلمان کی طرف سے کبھی ٹیپو سلطان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے یا ان کی تصویر لگائی جاتی ہے، تو بی جے پی اور آر ایس ایس کے پیٹ میں درد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے چھوٹے سے بڑے لیڈر آ کر اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آئی ٹی سیل کی طرف سے اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور پھر ان کے تمام نیشنل اسپوک پرسن بولنے لگتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر یہی خبر سب سے بڑی خبر بن جاتی ہے، اور اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ خبر یہ ہے، پہلے اسے جان لیجئے کہ مالیگاؤں کی ڈپٹی میئر شان ہند نہال احمد نے اپنی آفس میں پیچھے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگا دی۔ اب ان کی آفس کی فوٹو، یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں وہ اپنے چیئر پر بیٹھی ہے، ان کے سامنے ان کا ٹیبل ہے، اور پیچھے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر لوگوں نے لکھا، کچھ لوگوں نے پوزیٹیو وے میں اس کو وائرل کیا اور کہا کہ شان ہند نہال احمد نے اپنی آفس میں ٹیپو سلطان کی تصویر لگائی ہے، اور انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ ٹیپو سلطان کے ساتھ ہے، ٹیپو سلطان کو آئیڈیل مانتی ہے، ٹیپو سلطان کی بہادری یا ٹیپو سلطان نے جس طرح ہندوستان کو کئی ساری ٹیکنالوجی سے سرشار کیا، انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور انگریزوں کے راستے کو روکے رکھا، اس لیے وہ آئیڈیل ہے، اور شان ہند نہال احمد ٹیپو سلطان کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے۔ پوزیٹیو انداز میں اس طرح کا میسج لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ اب بی جے پی آئی ٹی سیل کی اس پر نظر پڑی، اور فوراً بی جے پی آئی ٹی سیل نے اس تصویر کو، اس میسج کو نگیٹو انداز میں تبدیل کر دیا، اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا، اور بی جے پی آئی ٹی سیل نے لکھنا شروع کر دیا کہ ڈپٹی میئر کے دفتر میں، ان کی آفس میں تصویر ہونی چاہیے بابا صاحب امبیڈکر کی، مہاتما گاندھی کی یا چھترپتی شیواجی کی، لیکن اس نے تصویر لگا رکھی ہے ٹیپو سلطان کی۔ اور ان مسلمانوں کی عادت یہی ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، یہ جو ہندوستان کے اصل اور ریئل ہیروز ہیں، ان کو اپنا ہیرو نہیں بتاتے، ان کی تصویر نہیں لگاتے، بلکہ یہ اورنگزیب سے محبت کرتے ہیں، ٹیپو سلطان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل اور رہنما مانتے ہیں، جبکہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہندوستان پر قبضہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ شروع میں بی جے پی آئی ٹی سیل نے اس طرح کی باتیں لکھی، اس کے بعد بی جے پی کے نیشنل اسپوک پرسن اس فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے باضابطہ اس پر پریس کانفرنس کرنا شروع کیا، میڈیا کو بائٹ دینا شروع کیا، اور اے این آئی اس معاملے میں سب سے زیادہ آگے رہتی ہے۔ اے این آئی لگاتار بی جے پی کے لیڈرز کے بیانات کو اب شیئر کر رہی ہے کہ کس طرح اس پر ریئیکٹ ہو رہا ہے۔ شہزاد پونے والا بی جے پی کے نیشنل اسپوک پرسن ہے، باضابطہ انہوں نے بی جے پی کے دفتر سے ایک ویڈیو جاری کر دی، اور شہزاد پونے والا نے اپنا ریئیکشن دیتے ہوئے جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے ٹیپو سلطان کے لیے، اورنگزیب کے لیے، یا مالیگاؤں کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے میئر اور ڈپٹی میئرز کے لیے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو جانے بغیر بھی ان پر الٹے سیدھے الزام لگا رہا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی کے نیتاؤں کے پاس نالج نہیں ہے، ان کو واٹس ایپ یونیورسٹی سے میسج ملتا ہے، اور جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی الٹا سیدھا بول جاتے ہیں۔ شہزاد پونے والا، آپ سنیے۔ دیکھ لیے تصویر ڈپٹی میئر مالیگاؤں کی، کس پرکار سے ان کے آفس میں ٹیپو سلطان کی تصویر لگی ہوئی ہے، پر چھترپتی شیواجی مہاراج کی نہیں، بابا صاحب امبیڈکر جی کی نہیں، مہاتما گاندھی جی کی نہیں، راشٹرپتی دروپدی مرمو کی نہیں۔ ان کے لیے ان کے جو آدرش ہے، ہیرو ہے، وہ بابر، غزنی، مغل، اورنگزیب، ٹیپو سلطان ہی ہے۔ ان کے لیے اے پی جے عبدالکلام نہیں ہے، ان کے لیے راشٹرپتی دروپدی مرمو نہیں ہے، ان کے لیے پٹیل نہیں ہے، ان کے لیے مہاتما گاندھی نہیں ہے، ان کے لیے چھترپتی شیواجی مہاراج ان کے آئیکن نہیں ہے۔ پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ممبرا کو اور مہاراشٹر کو ہرا کر دیں گے، کچھ لوگ بولتے ہیں حجاب والی، برقعے والی مہر بنے گی۔ اس دیش میں سمویدھان چلے گا، مہاراشٹر میں بھی سمویدھان چلے گا، اور اگر چھترپتی شیواجی مہاراج کو سمان نہیں دیا جائے گا تو یہ مہاراشٹر میں نہیں چلے گا۔ اگر مہاتما گاندھی جی کو، سردار پٹیل کو بھی آپ سمان نہیں دینا چاہتے، تو آپ بولتے ہو سمویدھان سمویدھان، پر من میں ہے اسلامک اسٹیٹ کی دکان۔
मन में है वोट बैंक की दुकान। यही है इनकी असली पहचान। आपने सुना शहजाद पुन्नेवाला को। और अब इस फहरिस्त में बीजेपी के सभी नेशनल स्पोक पर्सन आ चुके हैं, उनकी वीडियो सामने आ रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक इस पर बयान दिया जा रहा है। बीजेपी की मुंबई यूनिट ने तो बाज़ाब्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उसके बाद दिल्ली के नेता भी, दिल्ली के नेशनल स्पोक पर्सन भी कह रहे हैं कि ये औरंगज़ेब से, बाहर के नेताओं से मोहब्बत करते हैं, इन पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। ये लोग देश हित में बात नहीं करते हैं, ये लोग देश के नेताओं से मोहब्बत नहीं करते हैं। और जब हंगामा हुआ, एतराज़ हुआ, विवाद हुआ, तो उसके बाद शाहीन निहाल अहमद ने इस पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि जब हम तमाम लोगों को ऑफिस मिली और हम लोगों ने चार्ज संभाला, ऑफिस में बैठना शुरू किया, तो हमारी ऑफिस में किसी ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर आकर के लगा दिया। और मुझे इनकी तस्वीर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की, अंग्रेज़ों का रास्ता रोका। टीपू सुल्तान ने अस्पताल बनाया था, गरीबों का इलाज करते थे। टीपू सुल्तान ने कई सारी नई इजादात की। टीपू सुल्तान ने मंदिर बनाने का काम किया। टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलते थे। तो टीपू सुल्तान ने कभी भी हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की। टीपू सुल्तान ने कभी भी हिंदू और मुसलमान नहीं किया। टीपू सुल्तान ने कभी भी किसी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती नहीं की। टीपू सुल्तान ने इंसाफ, जस्टिस और बराबरी के साथ हुकूमत की। इसलिए मैं टीपू सुल्तान को पसंद करती हूँ और मुझे इनकी तस्वीर लगाने पर कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, जब अपने चार्ज मेयर और डिप्टी मेयर ने अपनी अपनी ऑफिस का संभाला, तो मैंने जब यहाँ आके अपना पद, अपनी ऑफिस का चार्ज संभाला, तो हमारे गठबंधन के कुछ मेंबरों ने, जो कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने मुझे ये सप्रेम भेंट दिया और उन्होंने ये लगा दिया। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज़ नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ़ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे, तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था, उसकी तारीफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए। और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फ़ौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे, तो वो मिसाइल की ईजाद करने वाले, हिंदुस्तान में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सुल्तान थे, वो टीपू सुल्तान थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की बात है। आपने सुना शाहीन निहाल अहमद को, उन्होंने बेबाकी के साथ ये सफाई दी है और टीपू सुल्तान की तस्वीर को हटाने से इनकार कर दिया है। अब टीपू सुल्तान कौन है, उनकी तारीख़ क्या है, उनका इतिहास क्या है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि टीपू सुल्तान का हिंदुओं से कितना करीबी रिश्ता था। टीपू सुल्तान उन नेताओं में शामिल थे अब तक जिन पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ, जिन पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने टीपू सुल्तान को भी औरंगज़ेब, हुमायूं और अकबर की कैटेगरी में रख दिया और उनके ख़िलाफ़ भी हंगामा बर्पा कर दिया। जबकि टीपू सुल्तान की तारीख़ अलग है। हालांकि देखा जाए तो ये तमाम हुक्मरान भी हिंदुस्तान के हुक्मरान रहे हैं। इन सभी लोगों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था, ताकतवर बनाया था, और इनमें से किसी पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन बीजेपी का एजेंडा है तारीख़ को गलत अंदाज में पेश करना, इन सबको घुसपैठिया करार देना। जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी, आरएसएस से जितने लोग हैं सभी के सभी घुसपैठिए हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी यहाँ का ओरिजिनल नहीं है। सभी लोग बाहर से आए हुए हैं जो यहाँ के ओरिजिनल शहरी है, जिनका डीएनए यहाँ से मैच करता है, उनको तो इक़्तिदार में आने का मौका ही नहीं दिया जाता। अब टीपू सुल्तान कौन है, ज़रा पहले उनकी तारीख़ जान लीजिए। टीपू सुल्तान की विलादत कर्नाटक में 1750 में हुई थी। टीपू सुल्तान के वालिद थे हैदर अली और टीपू सुल्तान का असल नाम था फ़तह अली ख़ान। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की रियासत मैसूर में हुकूमत थी। जब 1782 में टीपू सुल्तान यानी फ़तह अली ख़ान के वालिद हैदर अली का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद टीपू सुल्तान को वहाँ का राजा, हुक्मरान और बादशाह बनाया गया। टीपू सुल्तान ने 1782 में इक़्तिदार को संभाला और
یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کا لگاتار ریاست میسور پر حملہ ہو رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لے رہی تھی، وہاں پر اپنی آرمی کو بیٹھا رہی تھی، وہاں کی حکومت کو سنبھال رہی تھی، لیکن حیدر علی بھی لگاتار انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور برٹش امپائر کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریاست میسور میں آنے نہیں دیا حیدر علی نے۔ اس کے بعد جب ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالا تو ان کے ساتھ بھی 1784 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جنگ ہوئی اور پہلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جیت نہیں سکی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، مرشد آباد میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو ایسٹ انڈیا کمپنی کی، یا تمل ناڈو کے علاقے میں لڑائی ہوئی یا دوسرے علاقوں میں، ان تمام جگہوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو جیت مل رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہی تھی۔ پہلی مرتبہ 1784 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو پیچھے ہٹنا پڑا، ٹیپو سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان یعنی ریاست میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کو پیچھے ہٹنا پڑا اور ریاست میسور چلتی رہی، لیکن یہ لڑائی رکی نہیں۔ اس کے بعد 1990 اور 92 میں دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے، انگریزوں نے ریاست میسور پر حملہ کر دیا، ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیا، اور اس مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اکیلے ٹیپو سلطان پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 3 طرف سے ریاست میسور پر حملہ کیا تھا۔ حیدرآباد کی جو سلطنت تھی، یہاں نظاموں کی حکومت تھی، چنانچہ نظاموں کو، حیدرآباد کے نوابوں کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ساتھ ملا لیا، الائنس کر لیا۔ اس کے بعد مہاراشٹرا کے علاقے میں مرہٹا سلطنت تھی، مرہٹا سلطنت کے ساتھ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے الائنس کر لیا، سمجھوتا کر لیا، اور 3 طرف سے ریاست میسور پر حملہ کیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے سے نوابوں نے، نظاموں نے حملہ کیا، اس کے بعد ایک طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی حملہ کر رہی تھی، پھر مرہٹا نے بھی ریاست میسور کو اپنے گھیرے میں لے لیا، حملہ کر دیا، اور ایک ساتھ ٹیپو سلطان کو 3 بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگ لڑنا پڑا۔ اس کے باوجود ٹیپو سلطان نے ہار نہیں مانی اور ان تینوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد 1799 میں انگریزوں نے، نوابوں یعنی حیدرآباد کے نظاموں نے اور مرہٹا سلطنت نے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ریاست میسور پر حملہ کر دیا۔ سرنگا پٹنم کا جو قلعہ ہے وہاں تک انگریزوں کی آرمی پہنچ گئی اور فائنلی مئی 1799 میں ریاست میسور کی شکست ہوتی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو جیت ملتی ہے اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا تاریخی جملہ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ان کے ایڈوائزر نے، ان کے مشیروں نے ٹیپو سلطان سے کہا تھا کہ آپ چھپ جائیے، آپ باہر نکل جائیے، اور ہر قلعہ میں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جب اس پر حملہ ہوتا ہے، قلعے کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے تو سرنگ ہوتی ہے، خفیہ راستہ ہوتا ہے جہاں سے قلعے کا سربراہ یا ملک کا بادشاہ نکل جاتا ہے اور اپنی جان بچانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان سے بھی یہی کہا گیا، ان کے ایڈوائزر کی طرف سے، یہاں تک کہ برٹش آرمی نے بھی، حیدرآباد کے نظاموں نے بھی اور مرہٹا سلطنت کی آرمی نے بھی ٹیپو سلطان سے کہا آپ جا سکتے ہیں، آپ نکل سکتے ہیں، آپ کو ہم شہید نہیں کریں گے، لیکن ٹیپو سلطان نے کہا کہ نہیں، میں مرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور ٹیپو سلطان نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، اور 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت ہو گئی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے میزائل تیار کیا تھا، یعنی ایسا راکٹ شہید ٹیپو سلطان نے بنایا تھا جس کے ذریعے سے بارود کو دور تک پھینکا جا سکے، اور اس طرح کا راکٹ، اس طرح کا میزائل پہلی مرتبہ ٹیپو سلطان نے ہی بنایا تھا، انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور ٹیپو سلطان کو ہی دیکھتے ہوئے پھر انگریزوں نے بھی اسی طرح کا راکٹ تیار کرنا شروع کیا۔ تو میزائل کی شروعات ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ ٹیپو سلطان کا دوسرا اہم ترین کارنامہ ہے کہ انہوں نے سکہ جاری کیا تھا، کیلنڈر جاری کیا تھا اور اپنی پوری سلطنت میں پھیلایا تھا۔ ان کا ایک اور اہم ترین کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں، اپنی سلطنت میں مندروں کو بھی جائیداد دی تھی، مندروں کو انہوں نے عطیہ دیا تھا، اور ان کی آرمی میں، ان کے ایڈوائزرز میں، ان کے وزیروں میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک ہوتے تھے، اور ریاست میسور کو انہوں نے اسلامی ریاست میں تبدیل نہیں کیا تھا۔
बल्कि तमाम लोगों को साथ लेकर चल रहे थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक और अहम तरीन कारनामा है कि उन्होंने ज़राअत के शोबे में या कह लीजिए खेती के सेक्टर में किसानों की मदद की। कैसे कुएं से पानी किसानों के खेतों तक पहुँचे, कैसे ज़्यादा फसलें पैदा हो, ये सब काम भी टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए दुनिया भर से अपने ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने की कोशिश की थी, बाहर से मदद हासिल करने की कोशिश की थी। फ्रांस की जो उस वक्त की हुकूमत थी उसके साथ टीपू सुल्तान का राब्ता था, खिलाफत उस्मानिया से राब्ता था, अफ़गानिस्तान की हुकूमत से भी राब्ता किया, मदद हासिल करने की कोशिश की। लेकिन रियासत मैसूर को 3-4 हुकूमतों ने मिलकर घेर लिया था। टीपू सुल्तान अकेले, इधर हैदराबाद के निज़ाम, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों की आर्मी, फिर मराठा सल्तनत, और इसलिए रियासत मैसूर के ऊपर ब्रिटिश एम्पायर को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिल गई। टीपू सुल्तान के बारे में मशहूर मर्रिख इरफान हबीब ने जो लिखा है वो सबसे ज़्यादा अहम है और इसको इस वीडियो में जानना ज़रूरी है। BBC ने भी अपने एक आर्टिकल में इसका तस्करा किया और BBC ने लिखा इरफान हबीब के हवाले से कि 1784 में टीपू सुल्तान ने वेंकटचला शास्त्री और ब्राह्मणों के एक ग्रुप को ज़मीन गिफ्ट कर दी थी, अतिया में दे दी थी, और उनसे दरख्वास्त की थी टीपू सुल्तान ने कि वो उनकी लंबी उम्र के लिए और खुशहाली के लिए दुआ करे। इसी तरह इरफान हबीब ने एक जगह यह भी लिखा है अपनी किताब में कि टीपू सुल्तान ने मलकोटे के मंदिर को 12 हाथी दान दिया था, नजराना के तौर पर दिया था। इसी तरह श्रृंगेरी के मंदिर को भी टीपू सुल्तान ने बहुत बड़ा अतिया दिया था। जब मरहटों के हमले में सल्तनत मैसूर में मंदिरों को नुकसान पहुंचा, मंदिर के कई हिस्से टूट गए, तो टीपू सुल्तान ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए हुकूमत के फ़ंड से पैसा दिया और कहा मंदिर की मरम्मत करवा। और मंदिरों को तोड़ा था मरहटा सल्तनत ने, मरहटा सल्तनत की आर्मी ने। इरफान हबीब ने एक जगह और लिखा है अपनी किताब में, और BBC ने भी इसको कोट किया कि टीपू सुल्तान ने अपने एडवाइज़र्स और मुशीरों में ब्राह्मणों को भी शामिल कर रखा था और ब्राह्मण एडवाइज़र के मशवरे पर वो अमल करते थे। उनकी आर्मी में, उनकी फ़ौज में हिंदू मुसलमान सभी मज़हब के लोग होते थे। एक मरतबा टीपू सुल्तान ने अपनी पूरी आर्मी को एक दरिया में, एक नदी में नहाने का हुक्म दिया और कहा कि मुक़द्दस गुस्ल कर लो। और उमूमन ये जो तसव्वुर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो हिंदू कम्युनिटी के दरमियान पाया जाता है कि दरिया में नहा लो, खा गंगा में नहा लो या कुछ और नदियाँ है तो पाप धुल जाते हैं और आगे जीत के इम्कानात होते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को हुक्म दिया और कहा कि तुम सब दरिया में नहा लो, हिंदू मुसलमान सभी आर्मी को। इसी तरह टीपू सुल्तान के हवाले से एक और बात का तस्करा किया जाता है और BBC ने भी अपनी स्टोरी में लिखा, और ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं बल्कि सिर्फ 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले इंग्लैंड का जो एक म्यूज़ियम है, जो अजायब घर है जिसको क्रिस्टीज़ कहा जाता है, वहाँ टीपू सुल्तान की एक अंगूठी, एक रिंग नीलामी के लिए रखी गई और अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसकी कीमत लगाई। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत लगाई गई 150 करोड़ रुपए, और एक नामालूम शख्स ने 150 करोड़ रुपया देकर टीपू सुल्तान की रिंग को ख़रीद लिया, उसको अपने पास महफूज कर लिया। टीपू सुल्तान की ये जो रिंग है बहुत कीमती रिंग है, क्योंकि टीपू सुल्तान जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और लड़ते हुए उनकी शहादत हुई तो उस वक्त टीपू सुल्तान ने उसी रिंग को अपने हाथ में, अपनी उंगली में पहन रखा था और अंग्रेज़ ऑफिसर ने टीपू सुल्तान की उंगली से उस रिंग को, अंगूठी को निकाल कर अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद उसके पास रही, बाद में ब्रिटिश के अजायब खाने में या म्यूज़ियम में वो अंगूठी आ जाती है। जो अहम बात है इस अंगूठी के तस्करे में वो ये कि उस रिंग पर, उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ था, और यही इस बात का सबूत है कि टीपू सुल्तान हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं थे, हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ वो हिंदुओं के साथ भी मुशफ़िक़ाना रवैया रखते थे। एक और वाक़या है टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ कि टीपू सुल्तान की खिदमत में उनकी रियासत के एक इलाके के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं और बताते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उन पर ज़्यादती करते हैं, उनसे घटिया काम कराते हैं। और उसके बाद टीपू सुल्तान से उन लोगों ने कहा कि हम लोग तंग आ चुके हैं, हमें मसावात चाहिए, बराबरी चाहिए और हम इस सूरत हाल में जीने वाले नहीं हैं। उसके बाद टीपू सुल्तान ने वहाँ के ब्राह्मणों को बुलाया, समझाया, इनको जो दलित और OBC के लोग थे इनको
अच्छी लाइफ उन्होंने दी, इनके यहाँ उन्होंने सरकारी नौकरियां दी और कहा कि इनको कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बावजूद उनकी परेशानी कम नहीं हुई। फिर वहाँ के लोगों ने एक मर्तबा करके टीपू सुल्तान से कहा, हम लोग अपना मज़हब तब्दील करना चाहते हैं, हम इस मज़हब में नहीं रहना चाहते जहाँ इंसानों के दरमियान तफरीक़ है, तक़सीम है, कोई ऊपर रहेगा, कोई नीचे रहेगा, कोई सिर्फ पूजा करेगा, दूसरा सिर्फ काम करेगा, कोई किसी के सामने बराबर कुर्सी पर बैठ नहीं सकता, ऐसे मज़हब का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। और उस दिनों में क्रिश्चियन मिशनरी बहुत ज़ोरों पर थी। लगातार इंग्लैंड के पादरी इंडिया में आकर ईसाईयत को फ़रोग़ दे रहे थे। उस दौरान टीपू सुल्तान उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोगों ने तय कर लिया है मज़हब बदलने का, रिलीजन तब्दील करने का, तो तुम्हें अपने बादशाह का, अपने राजा का रिलीजन इख्तियार करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। और इसी बात पर शहीद टीपू सुल्तान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनको हमलावर बताया जाता है। शहजाद पुनेवाले जैसे शख्स के लिए तारीख़ जानना ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इंग्लैंड से भारत नहीं आए थे, वो फ्रांस यहाँ नहीं आए थे, अमेरिका से वो इंडिया नहीं आए थे, बल्कि कर्नाटक के गांव डेवनहली में उनकी विलादत हुई थी, वहीं उनका जन्म हुआ था। उनके वालिद का भी यहीं जन्म हुआ था। उनके वालिद भी हुक्मरान थे और ये भी हुक्मरान बने और इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को कुछ भी पता नहीं और जिसको ये चाहते हैं जालिम बोल देते हैं, जिसको चाहते हैं ये बाहर का आने वाला हुक्मरान बता देते हैं, यानी हर एक को ये ब्रिटिश एम्पायर की कैटेगरी में रख देते हैं। यही वजह है कि मालेगांव की डिप्टी मेयर निहाल अहमद के ऑफिस में जब टीपू सुल्तान की तस्वीर का मामला सामने आया, इस पर हंगामा हुआ, तो AIMIM के नेता वारिस पठान ने बहुत अच्छा जवाब दिया और कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की थी, इसलिए उनकी तस्वीर लगाई गई है। लेकिन बीजेपी और RSS के नेता जो हंगामा कर रहे हैं, तो ये बताया कि क्या इनका कोई लीडर है जिसने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, जिसको फ्रीडम फाइटर कहा जा सके और उसकी तस्वीर को लगाया जा सके। वो तमाम लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की थी, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी, ऐसे लोगों से RSS को, बीजेपी को प्रॉब्लम है और उस पर ये सवाल उठाते हैं। लेकिन इनका सवाल उठाना कोई माना नहीं रखता। 1799 में टीपू सुल्तान की जब अंग्रेज़ की आर्मी के साथ लड़ते हुए अपनों की गद्दारी की वजह से शहादत हो गई, तो उनकी शहादत के बाद ब्रिटिश आर्मी के जनरल या कह लीजिए अंग्रेज़ ऑफिसर लॉर्ड वेल्लेस्ली ने उनकी लाश पर खड़े होकर, उनकी लाश पर पांव रखकर कहा, अब से हिंदुस्तान हमारा है, कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। और यही सच्चाई है कि 1799 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सल्तनत मैसूर को अपने कब्ज़े में ले लिया, वहाँ से टीपू सुल्तान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद हिंदुस्तान के दूसरे इलाक़ों पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा बढ़ने लगा और 1857 में दिल्ली का लाल किला भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और मुकम्मल तौर पर पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश एम्पायर का ग़ुलाम बन गया। टीपू सुल्तान के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है, कोई उनको जालिम बोलता है, कोई बाहर का आया हुआ हुक्मरान बोलता है, तो बोलता रहे। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। टीपू सुल्तान की तस्वीर लगानी चाहिए, टीपू सुल्तान का एहतराम होना चाहिए, टीपू सुल्तान को आपको याद करना चाहिए। पिछले दिनों यानी दिसंबर के महीने में जब मैं कर्नाटक गया था, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के इजलास में, बेंगलुरु में मीटिंग थी और उसके बाद में मैसूर भी गया था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ मज़ार है, जहाँ उनकी क़ब्र है, वहाँ पर भी गया। मैंने वहाँ फ़ातिहा पढ़ी और आला हज़रत के नाम से शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ जाना जाता है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने अपना एक कारवां और काफ़िला निकाला था बेंगलोर से मैसूर तक और वहाँ जाकर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने अहद भी लिया था कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ की बहाली के लिए, हिंदुस्तान में शरीयत की हिफाजत के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जिद्दोजहद की, उनका जो मिशन, उनका जो पैगाम था, हमें उसी मिशन और पैगाम पर अमल करना है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स की मंथली मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और वहाँ पर मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप का प्लान मौजूद है 99 299। कोई भी एक प्लान ले लीजिए ताकि मिल्ला टाइम्स आगे बढ़े, मजबूत हो सके। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।